Welcome to the new another passage comprehension ability which was given in UPSC CSAT General Studies 2024 paper 2. Question number 71. First, how to approach comprehension ability. First one, thorough reading. Second, sentence by sentence analysis, vocabulary explanation, understanding the passage, answering the questions, and the learning outcome. Today, passage we will know first what we have to do. Read the following passage and answer the items that follow the passage. Answer to these items should be based on the passage given only. Now we will read the passage. Unlike religion and science, poetry does not posit or expect any belief in absolute truth. These forces are individuals who claim to have absolute truths in their grasp trend to turn dictatorial and tyrannical. Truth usually does not admit any contradictions or imperfections. It is unitarian. It is therefore not of much use for poetry. Poetry abides by the plurality of life and existence. Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, full of contradictions. Against the tyranny of truth, poetry remains a partisan of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry proposes both humility and defense. What are the questions given? Which one of the following statement best reflects the most logical and rational message conveyed by the above passage? It is the poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. Second one is truth is revealed through science or religion, and poetry is anathema to truth. Poetry is romantic, imaginary, and is about feeling, whereas science and religion are about truth. In the world of violence, tyranny, and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. What is the explanation given? We will know about sentence by sentence. Sentence 1 में क्या दिया है? Unlike religion and science, poetry does not posit or expect any belief in absolute truths. इसमें क्या दिया है? अच्छे से समझेंगे अभी. धर्म और साइंस से अलग कविता किसी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ पूर्ण सत्य पर विश्वास नहीं करती, ना ही इस तरह का विश्वास की उम्मीद करती है. इसमें वोकैबुलरी क्या है? रिलीजियन, बिलीफ सिस्टम मतलब धर्म. साइंस, सिस्टमिक नॉलेज मतलब विज्ञान. पोएट्री, लिटरली एक्सप्रेशन, कविता. पोजिट, assume as a fact, मान लेना. एब्सोल्यूट ट्रूथ, यूनिवर्सल, अनचेंजिंग ट्रूथ मतलब पूर्ण सत्य. सेंटेंस 2 में क्या दिया है? These forces are individuals who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. अच्छे से समझेंगे अभी. जो लोग या शक्तियान अपने पास एब्सोल्यूट ट्रूथ होने के दावा करते हैं, अक्सर तनाशाही और अत्याचारी बन जाती हैं. मतलब इसमें टफ वर्ड्स क्या है? फोर्सेस, पावर्स और इन्फ्लुएंसेस. डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक. टायरानिकल, ऑप्रेसिव मतलब अत्याचारी. सेंटेंस 3 में क्या दिया है? ट्रूथ
usually does not admit any contradictions or imperfections. It is Unitarian. अभी अच्छे से समझेंगे। सच्चाई अक्सर किसी विरोधाभाव या कमी को स्वीकार नहीं करती। ये एक ही होता है। वोकैबुलरी क्या है? कॉन्ट्रडिक्शंस, conflicting statements or ideas, imperfections, flaws, कमियान। यूनिटेरियन मतलब यूनिफाइड। सेंटेंस 4 में क्या दिया है? इट इज देयरफॉर नॉट ऑफ मच यूज ऑफ पोएट्री। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन अब अच्छे से समझेंगे। इसलिए ये सच्चाई कविता के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती। इसमें वोकैबुलरी क्या है? यूज, पर्पस, पोएट्री, लिटरेरी एक्सप्रेशंस। सेंटेंस 5 में क्या दिया है? पोएट्री अबाइड्स बाय द प्लूरलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। इसका अर्थ क्या है? कविता जिंदगी और अस्तित्व के अनेक रूपों का मानकर चलता है। वोकैबुलरी क्या है? अबाइड्स, एक्सेप्ट्स और फॉलोस। प्लूरलिटी, मल्टीपल फॉर्म्स, अनेकता। एग्जिस्टेंस, बीइंग और लिविंग, अस्तित्व। सेंटेंस 6 में क्या दिया है? परहैप्स पोएट्री फॉलोस रियलिटी विच इज प्लूरल, एनाक्रोनिस्टिक, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। अभी समझेंगे। हो सकता है कविता उस वास्तविकता को फॉलो करते हैं जो अनेक समय के साथ गुल मिलकर और विरोधाभासन से बरी होता है। वोकैबुलरी क्या है? रियलिटी, द स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट। वास्तविकता, प्लूरल, मल्टीपल, अनेक। एनाक्रोनिस्टिक, आउट ऑफ टाइम, नॉट इन द राइट टाइम, समय से बाहर। कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, विरोधाभाव। सेंटेंस 7 में क्या दिया है? अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रूथ पोएट्री रिमेन्स एज अ पार्टिसन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी। इसका मतलब क्या है? सच्चाई की तनाशाई के खिलाफ कविता हमेशा लोकतांत्रिक वास्तविकता की तरफदार रहती है। इसमें वोकैबुलरी क्या है? टायरनी, क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूल्स, पार्टीजन, सपोर्टर, democratic reality that accepts diversity and contradictions, लोकतांत्रिक वास्तविकता। सेंटेंस 8 में क्या दिया है? अगेंस्ट द arrogance of power, wealth and hierarchy poetry proposes both humility and defense। शक्ति, धान और पद दुरुस्ती की घमंड की खिलाफ कविता नम्रता और रक्षक का प्रस्ताव रखती है। इसमें वोकैबुलरी क्या है? एरोगेंस, प्राइड, घमंड, वेल्थ, रिचेस और मनी, हायरार्की, सिस्टम ऑफ रैंक्स, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, डिफेंस, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, रक्षा। इसमें इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स क्या है? पार्टिजन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी, मीनिंग क्या है? सपोर्टर ऑफ ए रियलिटी दैट एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी, अनेकता को स्वीकार करने वाली वास्तविकता का समर्थक। ये कहाँ यूज कर सकते हैं? कविता हमेशा एक डेमोक्रेटिक रियलिटी का पार्टिजन होते हैं जो जिंदगी के हर रंग को स्वीकार करती है। सेकेंड वन क्या है? प्रपोजेस ह्यूमिलिटी एंड डिफेंस। ए मीनिंग क्या है इसका? सजेस्ट मॉडेस्टी एंड प्रोटेक्शन, नम्रता और रक्षा का प्रस्ताव रखना। ये कहाँ यूज कर सकता है?
कविता शक्ति और धन के घमंड के सामने हमेशा ह्यूमिलिटी और डिफेंस का प्रस्ताव रखती है। इसमें क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। Only one question is given. Which one of the following statement best reflects the most logical and rational message conveyed by the above passage? What are the options given? First one is, it is the poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. Second में क्या दिया है? Truth is revealed through science or religion and poetry is anathema to truth. Poetry is romantic, imaginary, and is about feeling, whereas science and religion are about truth. In the world of violence, tyranny, and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. इसमें करेक्ट आंसर क्या है? It is the poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. Why this answer is correct? अभी हम एनालाइज करते हैं. It is the poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल पैसेज में मैसेज को रिफ्लेक्ट करता है. पैसेज ये बताता है कि पोएट्री एब्सोल्यूट ट्रूथ्स को नहीं मानती, जो अक्सर कॉन्ट्रडिक्शंस और इम्परफेक्शंस को रिजेक्ट करते हैं. इसके बजाय पोएट्री लाइफ की प्लूरलिटी, कॉन्ट्रडिक्शंस और इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करते हैं. यानी पोएट्री ह्यूमंस की इम्परफेक्शंस को रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करते हैं, जो साइंस और रिलीजियन नहीं करते. What are the justifications? Recognize and accepts imperfections. पैसेज क्लियरली ये बताता है कि पोएट्री कॉन्ट्रडिक्शंस और इम्परफेक्शंस को अपनी नेचर में इंक्लूड करते हैं. इस वजह से ये स्टेटमेंट पैसेज की मेन मैसेज को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर ऑप्शंस. ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजियन एंड द पोएट्री इज एनाथेमा टू ट्रूथ. इसका अर्थ क्या है? ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि पैसेज पोएट्री को सच्चाई से नफरत करने वाले नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि पोएट्री सच्चाई की यूनिटेरियन और रिजिड नेचर के खिलाफ है. सेंटेंस सी में क्या दिया है? पोएट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग्स, whereas साइंस एंड रिलीजन आर अबाउट ट्रूथ. इसका अर्थ क्या है? ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि पैसेज पोएट्री को सिर्फ रोमांटिक या इमेजिनरी नहीं बताता. ये पोएट्री को एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देखता है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करता है. इन द वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टायरनी एंड बिगोटरी, पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक रेसिस्टेंस. इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट में क्या दिया है? इनडायरेक्टली हिंट किया गया हो सकता है, लेकिन पैसेज का मेन फोकस ये नहीं है. पैसेज का प्राइमरी मैसेज पोएट्री के रोल पर है, जो लाइफ की कॉन्ट्रडिक्शंस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं. व्हाट इज द फाइनल जस्टिफिकेशन? पैसेज की मेन मैसेज ये है कि पोएट्री साइंस और रिलीजियन से अलग है, क्योंकि ये लाइफ के कॉन्ट्रडिक्शंस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं. साइंस और रिलीजन एब्सोल्यूट ट्रूथ्स पर फोकस करते हैं, जो कि रिजिड होते हैं और इम्परफेक्शंस को रिजेक्ट करते हैं. इसलिए ऑप्शन ये बिल्कुल सही है. If you find our content helpful, please like and share it with others and your friends. Your support motivates us to continue creating regular high quality videos that can help you on your path to becoming a civil servant. Thank you for watching.